We had already talked about the GATT and WTO in my last session, and I spoke about the functions of GATT and WTO. I also told about how World Trade Organization had replaced the GATT, but GATT is always at the heart of the particular WTO principles. So in continuation with my previous session, today I shall be covering on the topics, that is the Uruguay round and the World Trade Organization. Then I'll be talking on the trade blocks. Some of the topics are similar with the Indian economy and trade dependency paper, as I have seen. So I would not be giving much of the coverage to those topics which have been already covered in your that course, Indian economy and trade dependency course. If still you have any doubts, you can ask me later. I have shared the PowerPoint screen with you. Can you see the screen right now? Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay, Yes, fine. sir. So before I continue with the presentation and would discuss the topics, I would like to once again announce that those students who want the certification on soft skills and had already given the first assessment of soft skill value added course will be eligible to go for the next round. Today there is going to be another assessment wherein I will give you a home assignment kind of assessment. There would be two questions which you need to write or which you need to type. Do not copy because I will check the plagiarism from the software. If found copied with more than 40% of the copying part, the assignment will be straight away rejected. So I'll be sharing the two questions, and then based on that, you will be writing in your own words, referring my presentation which has been shared earlier with you. And then you need to scan that, and then you need to upload it in that 1 hour window period. The link will be closed after 1 hour. It would not be active. So anyone who is looking at the certification should be available for that particular time slot. By 2:15, you will get the questions, and then by 3:30 p.m. you will be required to upload the scanned version of your assignment. The file name should be your seat number. Inside the file, your name, your roll number, and your specialization should be mentioned. This is all I am expecting from you. I hope my points have been clear to everyone. If there is any doubt, you can ask me. Any questions regarding that assessment part? A specialization is needed, means you are from marketing or you are from finance or whatever core specialization is there. Your name, your seat number, and your specialization. I know that it is a soft skill assignment, but while saving the particular file, use your seat number only, the seat number which has been provided to you as the file name. It will help me to recognize your particular file, and I can give you that particular marks immediately after I go through that. Okay, so the particular file has to be uploaded on Google Drive. Link will be active only for 1 hour. Yes, please. Seat number or roll number? Seat number, I said. The roll number, you presently you can write the roll number only because university seat number has not come. Okay, sir. The same roll number which you are using to log in right now, 20128, 20203, 20142. These are the things which I want on the file so that I can identify your name and I can give you the marks based on the roll number without getting biased. I don't want to become biased with anyone. That is why I'm asking you to just kindly save the file name with the seat number. Okay. Yes, sir. So let's now start with the session with the Uruguay round and the World Trade Organization. As I spoke earlier about the World Trade Organization and General Agreement on Tariff and Trade, today we will talk about and we will learn about the Uruguay round. It took 7.5 years, almost twice the original schedule. By the end, 123 countries were taking part. It covered almost all the trade, from toothbrushes to the pleasure boats, from banking to telecommunication, and from the genes of wild rice to the AIDS treatment. It was quite simply the largest trade negotiation ever,
and most probably the largest negotiation of any kind in the history. This is the overview of उरुग्वे राउंड. ये एक ऐसा नेगोशिएशन था जहां पर 123 कंट्रीज ने पार्ट लिया था, जो वर्ल्ड का अभी तक का आज तक का सबसे बड़ा नेगोशिएशन बोला जाता है. इसमें ट्रेड से रिलेटेड यूज होने वाले सभी आइटम्स को डिस्कस किया गया और उसके बारे में उनका ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज कट करना, डेवलपिंग नेशंस को बेनिफिट पहुंचाना, जिसमें आइटम्स थे टूथ ब्रशेस, प्लेजर बोर्ड, यू हैड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, then banking, telecommunication, everything was included in that, and then the AIDS was also being included because that was a severe issue amongst all the countries. So ये सारी चीजें उरुग्वे राउंड में डिस्कस की गई. और इसके बाद क्या हुआ? According to the information which is available on the website of WTO, Uruguay round at times it seemed doomed to fail, but in the end the Uruguay round brought about the biggest reforms of the world trading system since the GATT was created at the end of the Second World War. The seeds of the Uruguay round were sown in November 1982 at a ministerial meeting of GATT members in Geneva in Switzerland. Despite its troubled progress, the Uruguay round did see some early results. Within 2 years, the participants had agreed on a package of cuts in import duties on tropical products, which are mainly exported by the developing countries. They had also revised the rules for settling the disputes, with some measures were taken being implemented on the spots. They called for the regular reports on the GATT members, the trade policies, a move which was considered important for the trade regimes Sorry, there was a power failure. Can you see the PowerPoint screen? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Due to power failure, I got disconnected. I again connected myself using the phone. So, as I was talking about the Uruguay round, here it started in November 1982. The ultimate goal was to cut on the import duties, especially for the tropical products, which were mainly exported by the developing countries, and to settle the disputes, with some measures were taken immediately as to how to settle the dispute among the member countries. And all those GATT members, the trade policies were being taken into consideration at the time of this particular Uruguay round. This was considered very important for all the trade related agreements, for making it transparent across the world. So this is the Uruguay round. Now later on, people had started asking questions. What happened to GATT? So the WTO had replaced the GATT as an international organization, but the general agreement still exists as the WTO's umbrella treaty for the trade in goods, updated as a result of the Uruguay round negotiation. So Uruguay round negotiation के बाद ये जो WTO का जो umbrella treaty है for trading in the goods, that was updated, but WTO ने initially GATT को replace किया. The trade lawyers distinguished between GATT 1994 and the updated parts of the GATT and the GATT 1947, which was the original agreement, which is still the heart of the GATT 1994 agreement. तो ये सारी चीजें GATT से related हैं और WTO से related हैं and Uruguay round. So I have just given you the information which is related to the Uruguay round, which is available on the website of
Uruguay round and WTO, you can refer to it and you will find all the 30 items which are listed where the agreement was done, and which are those 30 items that has been given in detail. Now talking about the trade blocks, ये जो देख रहे हैं अपने वर्ल्ड की पूरी कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने अपने एक ट्रेड ब्लॉक बना लिए और आपस में वो ट्रेडिंग करते हैं। उनको आपस में ट्रेडिंग करने के लिए फ्रीडम है। जैसे आपने इंडिया में यहाँ पर देखा, एशियन कंट्रीज में यहाँ सार्क है, यहाँ पर नाफ्टा है, यहाँ सेंट्रल अमेरिकन पार्लियामेंट है, यहाँ पर दूसरी कंपनी है, यहाँ EFTA है, यहाँ यूरोपियन यूनियन है, इधर पैसिफिक आइलैंड फोरम है। सो इधर MERCOSUR ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके सिलेबस में नहीं, सो आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट फॉर नाउ, बट इफ यू वांट द डिटेल्स इट इज अवेलेबल on just a single click. You can Google it and you will find all the trade blocks that exist in the world. There are 10 major trade blocks that exist. Then there are various small trade blocks also, but the major trade blocks which are been given in your syllabus, I would be covering it for you now. So let us try to understand what is a trade block. So trade block is basically a type of intergovernmental agreement. गवर्नमेंट्स के बीच का एग्रीमेंट है, ऑफन पार्ट ऑफ अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर द बैरियर्स टू द ट्रेड, दैट इज टैरिफ एंड अदर थिंग्स, आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड अमंग द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स जितने भी लगे टैरिफ के फॉर्म में, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस के फॉर्म में, उसको या तो रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है। ये गवर्नमेंट्स ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपके साथ ट्रेडिंग करेंगे तो काइंडली आप हमको इतनी छूट दीजिए, इतना रिबेट दीजिए टैरिफ्स में या अदर ड्यूटीज में, जिससे कि हम आपके साथ आसानी से ट्रेडिंग कर सकें, राइट। जैसे अभी चाइना इंडिया वॉर हो रहा है, आपको पता है, इट्स अ काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। इंडिया ने चाइनीज गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, उसकी वजह से क्या हुआ, दे वांटेड टू इंक्रीज द डिपेंडेबिलिटी ऑन द goods and on the items which are being manufactured in our country under Make in India campaign, because most of the manufacturers are still relying for the raw material coming from the China, and that is why the government has levied heavy import duty so that it will become costlier as compared to the local goods. In retaliation to the same, Chinese government has reciprocated by adding the import duties on the items which the India is exporting. So there is a list of items on which the Chinese government had raised the import duty by more than 200%. So it is a counter strategy by China to tackle the particular Indian government and to just deal with the pressure which is being indirectly coming from the Indian government. You know that more than 100 applications of China have been banned within a span of 1 month by Indian government, by broadcast ministry, because those were posing serious threat. The data was collected and was stored in some server in China, so later on it would have been used for hacking or for some other purpose. So that is what the reason was why the government of India had taken the cognizance of it, and they had immediately decided to ban all those applications. So when we talk about the trade blocks are basically the agreement between two parties or two or more parties or the group of members to further deal with the trade related issues and settle the disputes in a much cordial manner. That is what the function of trade block is. So trade block can be standalone agreements between several states or part of a regional organization. There are 4 types of trading blocks. ट्रेडिंग ब्लॉक 4 तरीके के होते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नंबर 1, द प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, किस एरिया में आपको ट्रेडिंग करनी है, उसको उसमें क्या प्रेफरेंस आपको रखना है। वो एग्रीकल्चर हो सकता है, इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकते हैं, या आपका कोई XYZ आइटम हो सकता है, तो वो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया बोलते हैं। देन फ्री ट्रेड एरिया, किस प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं मेंबर कंट्रीज के साथ में तो वहां पर कोई भी ड्यूटीज नहीं लगती, वो फ्री ट्रेड है, जैसे एसेंशियल गुड्स। देन कस्टम यूनियन एंड द कॉमन मार्केट। तो ये जो आपने ट्रेड ब्लॉक बना दिए 4 एरियाज में, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियंस एंड द कॉमन मार्केट। कस्टम यूनियन मतलब एक यूनियन बना दी, अब कहीं से भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कॉमन रेट लगाएंगे, जिसकी वजह से वो गुड अगर आप यूरोपियन यूनियन के एक स्टेट में खरीदो या दूसरे स्टेट में जाके खरीदो, उसमें प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द कस्टम यूनियन द यूनिफॉर्म रेट ऑफ द ड्यूटीज एंड द टैक्सेस आर बीन लिवाइड अक्रॉस द commodities across all the member countries.
Then you have the common market where the product can be available for all the member countries, wherein the product would be available at a common price. So this is how the trade blocks are being created. The main advantage of trade block results from increase in FDI. If you create a trade block with the member countries, you can not only increase your own economic development, but it will also help in increasing the foreign direct investments. And because the tariffs are removed, you will get more opportunities. The manufacturing sector will grow, the export sector will grow, and it will ultimately contribute towards the economic development of the country. The trade blocks are a special type of the economic cooperation, and they also protects its member countries within that region to imports from the non-member countries. So non-member countries के साथ में import हो रहे हैं, तो उसमें यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा, आसियान, सार्क, ये आपस में एक इनका यूनियन है और ये उस चीज को कंट्रोल करते हैं जिससे कि आपका कोई लॉस ना हो पाए. इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर. Okay, thank you. Moving ahead, the major regional trading blocks in the world. Let us try to understand through the points which are given in your syllabus, the major trading blocks across the world. The first one is the European Union. It is also called as EU. It is the abbreviation. It is a customs union, a single market, and now with a single currency, that is euro. The European Union, it is a political and economic union of 27 member states that are located primarily in Europe. Each member state is party to the founding treaties of the Union and thereby shares in the privileges and the obligations of the membership. This union has a total area of around 42,33,255 square kilometer and an estimated population of about 447 millions. As you can see on the right hand side, this is the European Union flag. As you can count the number of stars, how many stars are there? Can you count that? So 12. 12. 12, sir. Very good. There are 12 stars which can be seen on the flag of European Union. The flag has 12 stars because the number 12 is the symbol of completeness and unity. In various traditions, the 12 is a symbolic number representing the perfection. ये इसका significance है. 12 स्टार का मतलब ये नहीं कि 12 मेंबर कंट्री हैं, इसका मतलब है completeness and unity. कुछ ट्रेडिशन में 12 को एक सिंबॉलिक नंबर माना जाता है जिसका मतलब होता है परफेक्शन. रशिया में 33 नंबर को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन माना जाता है जिसका मतलब जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, जो इनविंसिबल है. वो 33 नंबर रशिया में बहुत फेमस है. अगर आप वर्ल्ड के किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, होटल में जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे उनका एक ट्रेडिशन है. अगर आप ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं तो आपको वहां पर 13 नंबर का कोई भी होटल रूम नहीं मिलेगा. 13 नंबर वो रखते ही नहीं क्योंकि उसको वो बैड मानते हैं. राइट, तो उसी तरीके से ये सिंबॉलिकल है. नाउ टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन यूनियन, एन इंटरनल सिंगल मार्केट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड through a standardized system of laws that apply in all the member states in those matters and only those matters where the states have agreed to act as one. मतलब ये यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग द ट्रेड, जहां पर हम एक यूनिटी बना के काम करेंगे. और वो मैटर्स पे उनकी एक यूनिटी बन गई और उन्होंने उसको करने के बाद, जैसे कि करेंसी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सभी मेंबर कंट्रीज की एक ही करेंसी होगी. और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, देयर आर 27 मेंबर कंट्रीज और द मेंबर स्टेट्स in European Union which are a part of this particular association or the trading bloc. European Union policies aims to ensure the free movement of the people, number 1, number 2 the goods, number 3 the services, and number 4 the capital. People, goods, services and capital, they aim to ensure that there has to be a free movement within the internal market.
enact the legislation in justice and home affairs, and maintain the common policies on trade, agricultural activities, fisheries, and regional development. Passport controls have been abolished for travel within the Schengen area, that is also called as the sovereign area. And the monetary union was established in 1999, coming into full force in 2002, and is composed of 19 member states which use the euro currency. तो 2002 के टाइम पे जब ये फुल फोर्स में आया, उस टाइम पे 19 मेंबर स्टेट्स थे, आज इसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं। द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आर ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्टुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। ये 27 मेंबर कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। सर मतलब सर ये Yes, sir. क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब 27 कंट्रीज है। यस, इनका एसोसिएशन है 27 मेंबर कंट्रीज का, स्पेशली इन द एरियाज, 4 एरियाज व्हिच आई हैव सेड। सर मतलब ये कम ज्यादा भी होते रहते हैं क्या? अभी तो प्रेजेंट में 27 है, कोई बाहर एग्जिट करना चाहेगा तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, जैसे ब्रिटेन ने डिसाइड किया ब्रेक्जिट के लिए। यस सर। राइट, सो वो उनके ऊपर है, मेंबर कंट्रीज के ऊपर कि हाउ लॉन्ग दे वांट टू बी इन दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन। जर्मनी ऑलरेडी बहुत दिनों से बोल रहा है कि जर्मनी एग्जिट हो जाएगा यूरोपियन यूनियन में। अभी आप देखेंगे तो जितनी भी कंट्रीज है उसमें जर्मनी बहुत पावरफुल कंट्री है, अगर वो निकल जाता है यूरोपियन यूनियन से तो उनकी इकोनॉमी वीक हो सकती है, यूरो की वैल्यू डाउन हो सकती है, तो जर्मनी को रोकने की कोशिश की जा रही है। राइट, यस सर। देखिए एसोसिएशन क्या होता है, जैसे आप 4 फ्रेंड्स आपस में कॉलेज में बने, आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम साथ में पढ़ाई करेंगे, साथ में रहेंगे, जो होगा जीना मरने की साथ में वादे किए, और बाद में क्या होता है किसी की शादी हो गई, किसी की जॉब लग गई, बाद में किसी का कोई पर्सनल रीजन है साथ में नहीं रह पाया। उसी तरीके से कंट्रीज का एक अपना पर्सनल एजेंडा था जिसको लेके ये लोग आगे बढ़े कि अपने बीच में फ्री ट्रेडिंग होनी चाहिए, जो ड्यूटीज लग रही हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स ज्यादा सफर कर रहे हैं उसको रिमूव करना है, आपके यहाँ पे कोई लोकल प्लेयर है वो दूसरे कंट्री में जाके ओपनली बिजनेस कर पाए, उसको फ्रीडम हो। ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करके उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन बना लिया। अल्टीमेटली गोल ये था कि अमेरिका को चैलेंज करना, क्योंकि अमेरिकन डॉलर जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, और उसके कंपैरिजन में यूरोप को एक स्टैंड लेना था कि हम अपनी करेंसी में ही ट्रेडिंग करेंगे। राइट, समझ में आया आपको? अभी ओपेक की अगर बात की जाए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये ओपेक क्या करता है? ओपेक ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया कि अब वो डॉलर में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। डॉलर में ट्रेडिंग करने की वजह से डॉलर के भाव बढ़ रहे हैं, खासकर यूएस डॉलर, अमेरिकन डॉलर। तो अब वो अगर अपनी करेंसी में अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी, क्योंकि वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज को ऑयल खरीदने के लिए उनकी करेंसी पहले एक्सचेंज करनी पड़ेगी, उससे उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो ये सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, कंट्रीज एक एसोसिएशन बनाते हैं। जब कंट्रीज का एसोसिएशन होता है गवर्नमेंट का, तो उसको ट्रेडिंग ब्लॉक बोला जाता है, स्पेशली व्हेन दे आर लुकिंग एट द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, दे वांट टू मेक अदर कंट्रीज एज द ट्रेडिंग पार्टनर। क्लियर हुआ? यस सर। सर ये Yes, ये सारे कंट्रीज डेवलप्ड है, ये ईयू के ना? ये मतलब इसमें सारे कहाँ डेवलप है? बल्गेरिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं। डेनमार्क इज डेवलप्ड। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्रीज को अगर इसमें देखेंगे, यू हैव जर्मनी, यू हैव फ्रांस, ठीक है। देन ये जो छोटे छोटे कंट्री है ना, ये अपने आप में स्पेन फॉर एग्जांपल, स्पेन भी आप कह सकते हैं डेवलप्ड नेशंस में आता है। बाकी ये जो ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, क्रोएशिया है, यहाँ पे पॉवर्टी बहुत है, यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम्स भी बहुत है, बट ये साथ में काम करना चाहते थे क्योंकि इनके पास में टैलेंट था, इनके पास में वर्कफोर्स था, लेबर था, जो वहां पे बाहर जाके काम नहीं कर सकता था। तो एक फ्रीडम मिल गया इनको कि अब वो कहीं पर भी जाके यूरोपियन यूनियन के किसी भी नेशन में जाके जॉब कर सकते हैं। एक स्लोवाकिया का आदमी आज जर्मनी में फ्रीली जाके काम कर सकता है, उसको पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस।
मतलब Okay. सर यूरोप मतलब पूरा ये नहीं है, पूरा डेवलप नहीं है, कुछ नहीं, कंट्रीज ही। एग्जैक्टली अमेरिका में भी देखिए ना, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकन कंट्रीज की अगर बात की जाए, आपको पता है वेनेजुएला? यस सर। सुना है आपने? ओके, इस तो ये प्रॉब्लम साउथ प्रॉब्लम में अमेरिकन था। कंट्रीज में बहुत गरीबी है। और बहुत मतलब इतनी गरीबी है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राजील, आपने सुना होगा। वहां पे तो काफी अनएजुकेशन है, पॉपुलेशन बहुत हाई है, बट देन पर कैपिटा इनकम लो है। देन यू हैव कंबोडिया, कोलंबिया। कोलंबिया भी ठीक ठाक है। देन अर्जेंटीना, अगेन अर्जेंटीना में क्या है, अर्जेंटीना जाना जाता है केवल सॉकर के लिए। देन यू हैव पेरू। वेनेजुएला, वेनेजुएला जाना जाता है ओनली फॉर द रिच मिनरल्स, द रेयर मिनरल्स विच आर बीन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द जीपीएस devices, and it is also been used for making the projectiles, रॉकेट्स लॉन्चर्स वगैरह बनाने के लिए। वो जो एक टार्ट्राइट करके एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जो वहां पर अभी पाया गया है, अदरवाइज चाइना का होल्ड था। वर्ल्ड का 90% प्रोडक्शन उसका जीपीएस का वो जो टार्ट्राइट करके मटेरियल है वो वहीं से आता था। इसको ब्लू गोल्ड भी बोला जाता है, राइट? सो देन इक्वाडोर, वहां पे वो कंट्री है। बोल्विया, पैराग्वे, उरुग्वे, गुआना, फ्रेंच गुआना, ये देन एक आइलैंड है वहां पर जिसका नाम है फाल्कलैंड आइलैंड। बहुत गरीब है ये तो। हर जगह पे आप जाओगे, इवन एशिया में, एशियन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो एशियन कंट्रीज में चाइना बहुत स्ट्रांग है। इंडिया जो है अगर देखा जाए तो इंडिया सेकंड नंबर पे बोल सकते हैं आप। उसके बाद जो टोटल अगर बोला जाए, अगर एशियन कंट्रीज में, डू यू नो हाउ मेनी एशियन कंट्रीज आर देयर? नो सर। Okay, there are 48 Asian countries in my knowledge, 48। और इसमें जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, यू हैव सिंगापुर एज द एग्जांपल। अगर आप बात करें चाइना, चाइना इज आल्सो वेरी मच डेवलप्ड। इंडोनेशिया अगेन गरीबी है वहां पर, वो टूरिज्म के ऊपर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान इज अगेन अ डेवलप्ड कंट्री। फिलीपींस अगेन वो एक ऐसी स्टेज में है कि वो कॉम्पीट करना चाहता है, बट देन वहां पे मैन पावर सस्ता है, इसलिए जितनी भी बीपीओ केपीओ कंपनी है वो फिलीपींस में जा रही। इंडिया से मोर देन 70% बीपीओ हैव एग्जिटेड because they have got the cheap labor from the economical labor from Philippines। वियतनाम अगेन, वियतनाम तो आप जानते ही हैं, हमेशा वहां पर पॉवर्टी बहुत रहती है। टर्की अगेन एक स्मॉल कंट्री। ईरान, थाईलैंड, म्यांमार, साउथ कोरिया, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, येमेन, भूटान। नेपाल, नॉर्थ कोरिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान, सीरिया, कंबोडिया, जॉर्डन, ये सारे कंट्रीज हैं उसमें। इजराइल भी आता है। सर मतलब सारे ये भूटान सर। डेवलपिंग है ना, इजराइल छोड़ के? जी बेटा, इजराइल छोड़ के सारे डेवलपिंग कंट्रीज एशिया में, बराबर ना सर? नहीं, एशिया में अगर बात किया जाए, यू हैव जापान डेवलप्ड कंट्री में आता है, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद अगर आप देखोगे इकोनॉमी अगर किसी की स्ट्रांग है तो चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, सिंगापुर की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप बाकी अगर कंट्रीज को देखेंगे, नॉर्थ कोरिया अगेन दे आर नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वेपन्स, लेथल वेपन्स। अगर आप इसमें दूसरे कतर को देखेंगे, दोहा कतर बहुत डेवलप्ड है, उनके पास तेल का पैसा है, इसलिए वो Yes. इतने ज्यादा स्ट्रांग है। कुवैत अगेन तेल का पैसा है, ओमान तेल का पैसा है उनके पास में। बट छोटे छोटे कंट्रीज हैं, लेबनान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, अर्मेनिया, ये सारे सब छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड हैं। अभी अफगानिस्तान, आपको पता होगा, अफगानिस्तान में 20 साल के बाद अमेरिकन ट्रूप्स वहां से एग्जिट हो गई। और ये उस टाइम पे एग्जिट हो रही है जब तालिबान वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। वो 1990s के रूल लेके आ रहे हैं, और वो 1990s के रूल लाने के बाद अगेन वहां पर तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई टू रूल द पीपल। समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब बात करते हैं कि 3 ऐसे कंट्रीज हैं एशिया में जो फुल्ली डिपेंडेंट है चाइना में। फर्स्ट इज ताइवान, सेकंड इज हांगकांग एंड थर्ड वन इज मकाओ। अगेन हांगकांग डेवलप्ड है बट देन दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। मकाओ अगेन, मकाओ काफी जाना पहचाना, आपने सुना भी होगा टूरिज्म के लिए। एंड ताइवान अगेन, आपके मोबाइल फोन में लगने वाली बैटरी या उसका मदरबोर्ड वर्ल्ड में मैक्सिमम 2 कंट्रीज से ही आता है, या तो ताइवान से या चाइना से। डू यू नो दैट? Yes, sir. यस सर। ओके, फाइन। सो अब आज मैंने आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दी। देयर आर 48 मेंबर कंट्रीज इन एशिया, प्लीज रिमेंबर दैट। Yes, sir. ओके, शैल वी गो अहेड नाउ? यस सर।
आगे बढ़ रहा हूं मैं, Yes. आप लोगों का कंफर्मेशन चाहिए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, Yes, sir. Yes, sir. Yes. okay, thank you. Now coming to the next trade block, which is called as OECD. This is the Organization for Economic Cooperation and Development, and it is an international organization that works to build the better policies for the better lives. The goal is to shape the policies that foster the prosperity, equality and opportunity and well-being for all. तो यहाँ पर इनके जो मेन एरियाज हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये मेन एरियाज हैं। नंबर 1 प्रॉस्पेरिटी, नंबर 2 इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के लिए अभी आपको पता होगा almost $2 billion has been donated by Bill Gates and Melinda Gates Foundation. वो जेंडर इक्वालिटी के लिए डोनेट किए उन्होंने। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में आज भी ये जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा सीवियर इशू है, राइट? एंड इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेसेस, आपको तो पता है ब्लैक लाइव्स मैटर, #BLM, ये बहुत चल रहा है। अमेरिका में आए दिन कुछ ना कुछ शूट आउट होता है, केवल ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच में वो जो फाइट चल रही है। तो ये इक्वालिटी के लिए लोग लड़ रहे हैं। आपको पता है कि हमारे फादर ऑफ नेशन लेट श्री M.K. गांधी Yes, जी, sir. वो जब साउथ उनके अफ्रीका में गए थे, स्टैच्यू को तो उनको धक्के मार के ट्रेन से बाहर कर दिया गया था। उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस चीज के लिए फाइट करेंगे। पता है आप लोगों को? यस सर, साउथ अफ्रीका में। यस सर। एग्जैक्टली। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारे लीडर हुए, नेल्सन मंडेला फॉर एग्जांपल, बराक ओबामा, जिन लोगों ने इन सब चीजों को डिफेंड किया। बट बाद में आए हमारे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस चीज को काफी प्रमोट किया, वाइट्स को ज्यादा प्रमोट किया, और उसके टाइम पे सबसे ज्यादा ये सारे जितने भी एक्टिविटीज हैं, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज हैं, ये जितना भी वायलेंस है उसके टाइम से बढ़ गया। शैल वी गो इट नाउ? यस सर। ओके, Yes, so sir. OECD के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? There are 38 member countries from North and South America to Europe and Asia Pacific. India is the 27th member and it became member on 16th of May 2007. OECD का समझ में आया? ऊपर ये लोगो है OECD का। 60 years हो चुके हैं इसको। लेक्चर में हेडफोन डाल के बैठा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? यस प्लीज। अभी जो अमेरिका में घटना घटी थी, महात्मा गांधी जी के जो स्टैचू के अंदर आंखों के अंदर लेजर लगाई थी, अभी कुछ दिनों पहले की घटना है। यस एग्जैक्टली, आई नो, फिलीपींस में हुई थी। हाँ मैं जानता हूँ। और ऐसा क्या होता है, बेसिकली कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो टाइम टू टाइम वो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि वहाँ पर जब आप लंदन में जाएंगे तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मोस्टली इंडियन रहते हैं, उसको एक छोटा सा इंडियन कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। वहाँ पर आपको इंडियन होटल्स मिलेंगे, सिख लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मैक्सिमम इंडियंस NRIs मिलेंगे। बट वहाँ पर अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं रेशियल अब्यूजेस के, जहाँ पर इंडियंस को और एशियंस को बोला जाता है यू स्टिंक, इवन दो वो बिल्कुल नहाए धोए साफ सुथरे बैठे हैं, बट वो लोग उनको बोलते हैं यू स्टिंक। तो ये सारी चीजें हैं, और इन सब चीजों को एक तरीके से डिस्करेज करने के लिए ये सारे ट्रेड ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जिससे कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री के लोगों के साथ, उसके प्रोडक्ट्स के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाए। दैट इज द मेन रीजन। शैल आई गो अहेड नाउ? यस सर। सर, और ये जो इंडियंस को मारा गया था, ये भी मतलब ब्लैक व्हाइट का भी मैटर है क्या सर? ये जो यस मारे गए, एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली ब्लैक लाइव्स। और उनको लगता है कि हम उनसे उनके जॉब छीन रहे हैं, ऐसा भी लगता है ना उनको सर? देखिए वो तो एक इनसिक्योरिटी आई गई है, बट आप अगर शुरुआत से देखेंगे तो शुरुआत से यही एक हिस्ट्री है। अभी कनाडा में कल वो विक्टोरिया और उनकी एफिगी और उसमें वो उनके स्टैचू को तोड़ा था कॉलोनाइजेशन की वजह से। पढ़ा आप लोगों ने न्यूज में? यस सर। कनाडा में तो ये इन लोगों ने क्या किया, डेवलप कंट्रीज ने कॉलोनाइजेशन किया, हर जगह जाके अपनी अपनी कॉलोनी बसा दी और वहां से सारी चीजें एक्सप्लॉइट कर ली। उनके जितने भी अच्छे रिसोर्सेज थे, आपने एक तो सुना ही होगा कोहिनूर डायमंड, हमारा क्वीन विक्टोरिया के ताज में आज भी वो कोहिनूर डायमंड है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ के बहुत सारे मंदिर जो हजारों साल पुराने थे, उनके अंदर से मूर्तियां, उनके अंदर से एक्सपेंसिव आइटम निकाल निकाल के वो लोग वहां अपने कंट्री में ले गए।
तो ये जो कॉलोनाइजेशन और ये सारी चीजें, जो पॉवर्टी है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इसके लिए कई लोग उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है, वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने इनके ऊपर रूल किया, अब आज ये हमारे ऊपर रूल करना चाहते हैं। तो ये माइंडसेट है उनका। Yes, sir. Got it, sir. Shall we go ahead now? Yes, sir. Okay. The next point is the OPEC. OPEC का ये लोगो है, याद रखिएगा, right? So it is also called as the Organization for the Petroleum Exporting Countries and is an intergovernment organization for the 13 countries, founded on 14th of September 1960 in Baghdad by the first 5 members. It has since 1965 been headquartered in Vienna in Austria, and the irony is Austria is not an OPEC member state. इनका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में, बट ऑस्ट्रिया आज तक इसका ओपेक का मेंबर स्टेट नहीं हुआ। Talking about OPEC, currently the organization comprises of 15 member countries, namely Algeria, Angola, Congo, Ecuador, then Equatorial Guinea, then Gabon, then IR, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, United Arab of Emirates and Venezuela. ये 15 countries हैं. The objective of OPEC is to coordinate and unify the petroleum policies among the member countries in order to secure the fair and stable prices for the petroleum producers. An efficient economic and regular supply of petroleum to consuming nations and a fair return on the capital to those investing in the industry. 3 मेजर इनके पर्पस थे। पहला तो ये कि जो भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनकी जो पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं, उसको यूनिफाई करना, यूनिफॉर्म करना। नहीं तो होगा क्या, जहां सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वो कंट्री दूसरी जगह पे जाके खरीदेंगी। तो इन्होंने अपनी पॉलिसीज यूनिफाई कर दी कि अगर अब आपको हमसे लेना है तेल तो यही प्राइस में मिलेगा। जिस तरीके से आपने देखा बार्बर्स का एसोसिएशन होता है, ऑटो रिक्शा वालों का एसोसिएशन होता है। आप एक ऑटो रिक्शा वाले को बोलोगे कि भैया यहाँ से शिवाजी नगर चलोगे, वो आपको बोलेगा हाँ चलूंगा, 150 रुपए लूंगा। आप सोचोगे कि दूसरे के पास जाता हूँ, दूसरा भी आपको यही बोलेगा, तीसरा भी आपको यही बोलेगा। ये सारी चीजें एसोसिएशन का फायदा होता है कि यू कैन यूनिफाई द पॉलिसीज। इसी तरीके से ओपेक ने क्या किया, टू यूनिफाई द पॉलिसी अमंग द मेंबर कंट्रीज इन ऑर्डर टू सिक्योर द फ्री, फेयर and stable prices for the petroleum producers. Second था efficient economic and regular supply of petroleum to consuming nation. आपस में डिसाइड कर लिया कि हम कितना प्रोड्यूस करेंगे और उसका कितना प्रोपोर्शन हम कंज्यूमिंग नेशन को देंगे। एंड देन फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल टू दोज इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री। सबको फेयर रिटर्न मिलना चाहिए, ये ओपेक का पर्पस था। नाउ द नेक्स्ट इज सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है South Asian Association for Regional Cooperation. This South Asian Association for Regional Cooperation, also known as SAARC, is the regional intergovernmental organization and the geopolitical union of states in South Asia. Its member states are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. ठीक है, टोटल इसमें 8 कंट्रीज हैं। आप यहाँ पे इनका ये फ्लैग देख सकते हैं। दिस इज द फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान, दिस इज बांग्लादेश फ्लैग, दिस इज योर भूटान, देन दिस इज इंडियाज फ्लैग, दिस इज मालदीव्स फ्लैग, दिस इज नेपाल्स फ्लैग, दिस इज पाकिस्तानी फ्लैग एंड दिस इज श्रीलंका। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क में। अगेन इनका पर्पस वही है कि आपस में ट्रेडिंग करना, ट्रेड ब्लॉक्स बना दिए कि जिससे आपस में डीलिंग कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करना, ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करना और बाकी बहुत सारी चीजों पे काम करना साथ में, राइट। आप बांग्लादेश में विदाउट वीजा जा सकते हैं, भूटान में विदाउट वीजा जा सकते हैं, मालदीव में विदाउट वीजा जा सकते हैं, नेपाल में विदाउट वीजा जा सकते हैं, राइट। पाकिस्तान में जरूरी है बिकॉज हमारे उनसे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो श्रीलंका में आप जा सकते हैं। तो ये मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारे ट्रेड ब्लॉक तो आपके दिए हैं ओवरव्यू, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द अदर थिंग्स आल्सो which are not in the context but are very important for you because these things are very interesting for you once you get into the role of corporate job and then you will be dealing with various clients from other nations. You should know how to utilize the benefit of such kind of associations for your organization.
क्लियर हुआ आप लोगों को? यस यस सर। यस सर। आज बहुत शांत है पूरी क्लास, क्या हो गया? कुछ इशू हुआ है क्या? नहीं सर, No, आज sir. सर लाइट नहीं है घर पे, बहुत अभी अभी आया है लाइट, तो सुबह से ओके, लाइट हाँ, नहीं मेरे यहाँ पर भी अभी लाइट नहीं है। और ये जो है लाइट का सैटरडे को आजकल होने लग गया है, पहले हाँ, थर्सडे हर सैटरडे जा रहा है सर अभी 1 महीने से। अब जो है, अब इन लोगों ने क्या किया, अभी सैटरडे को बहुत ज्यादा लाइट काटने लग गए। हाँ एंड ये जो चीजें हैं अभी कंट्रोल होनी चाहिए। अभी हम 21st सेंचुरी में आ गए, अभी तक हम लाइट, ये पावर शेडिंग और ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक पहले है, सर सिर्फ गुरुवार को ही जाते थे, अभी सैटरडे भी जा रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर अमेरिका में 1 घंटे के लिए लाइट चली जाती है तो उनको करोड़ों का नुकसान होता है, और यहाँ लोग यूज्ड टू हैं। Okay, so as we talk about SAARC, meeting of heads of state are usually scheduled annually, and meetings of foreign secretariats especially is being conducted twice in the year. And when you talk about the headquarter of SAARC, its headquarter is in Kathmandu in Nepal. काठमांडू उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ लकड़ी का काफी काम है। वहाँ घर जो बने हुए हैं वो मोस्टली वुडन है। काठ मीन्स लकड़ी, और काठमांडू वहां पे जगह का नाम पड़ा। ओके, सर वो शिव के मंदिर के लिए भी फेमस है ना सर? यस। और मंदिर का क्या नाम है? पशुपतिनाथ शायद। एग्जैक्टली, वो पूरा मंदिर लकड़ी का बना हुआ है। सो एज वी टॉक अबाउट सार्क, दे हैड स्टेटेड 11 एरियाज ऑफ कॉपरेशन। 11 एरियाज जो है उनके, पहला तो एग्रीकल्चर है, सेकेंड इज एजुकेशन, थर्ड इज देयर कल्चर, फोर्थ इज sports, fifth is health, sixth is population, seventh is child welfare, eighth is environment and meteorology, ninth is rural development, 10th is tourism and transport, and 11th is science and technology. ठीक है, अदर एरियाज भी हैं उनके पास में, कम्युनिकेशन है, वुमेन डेवलपमेंट है, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग है एंड ड्रग अब्यूज। ये सारी चीजें उन्होंने एक चार्टर बनाया है और उस चार्टर के हिसाब से वो इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया। नाउ इट्स द टाइम फॉर योर क्वेश्चंस। यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस प्लीज। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस, you can ask me. सर बीच में न्यूज़ था कि you are there for after a long time in my class. Sagar, you had some question? Please tell me. यस सर। सर बांग्लादेश का न्यूज़ था बीच में कि वो अपने हमसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो वो क्या है? उनका इकोनॉमी अच्छे स्ट्रांग हो रहा है अभी। ओके, जब आप बांग्लादेश की बात करते हो, आप बांग्लादेश के बारे में क्या जानते हो? सर हमने उनको आज़ादी दिलाई थी। हमने उनको क्रिएट किया, राइट? अगर उनका जीडीपी देखा जाए बांग्लादेश का आज की तारीख में, सो उनका जीडीपी है 365 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ठीक है, और जीडीपी में उनकी रैंक जो है अभी 2021 में, दैट इज 37th। उनकी जीडीपी जो है वो 7.9% से ग्रो कर रही है। इंडिया की जीडीपी आज की तारीख में 10% या उससे ऊपर होती अगर इंडिया में कोविड पैंडेमिक नहीं आया होता, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, रेड कारपेट कल्चर को खत्म करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को उसको बढ़ाना, उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारी पॉलिसीज एंड मेजर्स लेके आए, सिंगल विंडो सिस्टम लेके आए, बहुत कुछ ऑनलाइन कर दिया। आधार उद्योजक करके एक वेबसाइट है जिसमें जाइए आप सिंगल डे पे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आपको किसी भी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये इंडिया के फेवर में थी, मेक इन इंडिया कैंपेन, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन, बट देन India got affected badly with the pandemic. They are growing faster because per capita income is increasing, because उनके वहां पर जो भी उनके नेचुरल रिसोर्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, उसका वो प्रॉपर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं अपने फंड को। उनके यहाँ पर कोविड है बट इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ पर प्रिविलेंट है। आज हमारी इकोनॉमी में जो सबसे मेजर कंसर्न है दैट इज कोविड।
मैक्सिमम ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही 70% ऑक्सीजन बोला गया है इंडस्ट्रीज को कि वो 70% का प्रोविजन बना के रखे हैं हॉस्पिटल को सप्लाई के लिए। अब वो इंडस्ट्रीज स्ट्रगल कर रही हैं। जब प्रोडक्शन कम होगा हमारा तो हमारी ग्रोथ तो कम हो ही जाएगी, राइट? इंडिया ही नहीं, कोई और नेशन भी हमसे आगे निकल सकता है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट है, पर कैपिटा इनकम कंपेयर करने जाओगे तो कम निकलेगी। रीजन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर डिवाइड करोगे इनकम से तो पर कैपिटा इनकम कम आएगी, एंड देन फर्दर जॉब लॉसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज ऑल थिंग्स विल ऐड टू द वोज ऑफ द कंट्री। यस सर। समझ में आया? यस। और कोई क्वेश्चन? और सर भूटान का भी ये था ना सर कि ये सबसे हैप्पी कंट्री है, तो इनका राज क्या है सर? देखिए, किसी भी कंट्री के हैप्पी होने का रीजन क्या होता है? सेल्फ कंटेंटेड, उनको अपने ऊपर ट्रस्ट है। गांधीयन थॉट्स बात की जाती है, गांधी जी का एक थॉट था ट्रस्टीशिप। ये ट्रस्टीशिप जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्ल्ड के बड़ी बड़ी कंट्रीज आज उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो ट्रस्टीशिप का मतलब ये होता है कि आप जरूरत से ज्यादा अपने पास वेल्थ मत रखो, आपके पास जो एक्सेस है उसको दे दो, डोनेट कर दो लोगों के लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली वो मानते हैं कि गॉड का दिया हुआ है, तो इट शुड बी गिवन टू अदर्स। लोगों की हेल्प करिए, जो लोग पुअर हैं, अनएजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनको हेल्प करिए, उनको ग्रो करने में मदद करिए। ये एक रीजन है दैट कि भूटान जो है एक हैप्पी नेशन में, नीदरलैंड मोस्ट हैप्पी नेशन में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जरूरत से ज्यादा उसको स्टोर करके ना रखें, जरूरत से ज्यादा अपने लिए उसको हम ना यूज करें, रादर यू शुड बिकम सेल्फलेस। ओके? यस सर, थैंक यू सर। किसी भी चीज को हैप्पीनेस के लिए एक चीज याद रखना, जो हैप्पीनेस के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनर सेटिस्फैक्शन। हैप्पीनेस कभी भी बाहर से नहीं आता, हैप्पीनेस आता है अंदर से। दुनिया के बाहर बहुत सारा तमाशा चल रहा है, बहुत मेला चल रहा है, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो तभी आएगा जब आप खुद से सेटिस्फाइड फील करेंगे, ठीक है? तो ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स एक भूटान का निकला था 2030 में, और उसके हिसाब से 40.8% पीपल इन भूटान हैव अचीव्ड मोर हैप्पीनेस। तो ये एक फैक्ट है। हमारे यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स कम क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग हार्ड वर्किंग बहुत हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग हॉलीडे डिप्राइव्ड नेशन। यहाँ के लोग काम ज्यादा करते हैं, इनको छुट्टियां नहीं मिलती हमारे कंट्री के लोगों को। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि कई बार मजबूरी होती है, हम काम करते रहते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि हमारा हमारी एक फिलॉसफी है, काम हाथ में लिया तो जब तक खत्म नहीं होता हम खुद से छुट्टी मांगने नहीं जाते, राइट? यस सर। Any other questions? I hope आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, जो भी पॉइंट्स हम शेयर करते हैं वो आपको समझ में आते हैं। कोई ऐसा है जिसको Yes, कुछ sir. कहना है? थैंक यू तेजस। कोई कुछ कहना चाहता है? आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Anyone would like to say anything? आज का लेक्चर बहुत अच्छा हुआ सर, मोरली बहुत से नॉलेज मिल चुके हैं सर आज। सच है तेजस, इसके लिए मुझे पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं जब आपको जियोपॉलिटिक्स Yes, पढ़ा sir. रहा हूँ तो मुझे बाकी की चीजों को भी पढ़ना पड़ता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज अपडेट्स, ये सारी चीजें आपकी लाइफ का एक पार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? सर मैगजीन कौन सी life में- पढ़नी चाहिए हमने अभी से अभी? बिजनेस टुडे, you should go for the white papers, then बिजनेस वर्ल्ड, ये सारी मैगजीन्स आपको जरूर प्रिफर करनी चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। अभी शुरुआत में पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट वर्ड सामने आएंगे, बट अभी सर टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया सर हमने। स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले हेडिंग से चालू करिए एंड देन ट्राई टू बिल्ड योर वोकैबुलरी। किसी भी फील्ड में जाओगे, बिजनेस लाइन में जाओगे तो उसके कुछ जार्गन्स हैं, वो समझने की कोशिश करोगे तो अपने आप वो चीजें इजी हो जाएंगी आपको समझना। फॉर एग्जांपल, जब आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो तो आपको डेली बैंक से रिलेटेड दिखता है, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, राइट? ऑल दीज थिंग्स ये सब जंबल होती हैं आपके सर के ऊपर से, बट देन धीरे धीरे करके अगर आप वो वोकैबुलरी डेवलप करेंगे तो वो आपकी नॉलेज बेस को इंप्रूव करेगी, right? Yes sir. So I'm concluding here. Thank you everyone. We will meet again post lunch.